we have seen about binary amplitude shift keying, right? We can also write it like BASK, binary amplitude shift keying. And we have seen that these are the digital modulation schemes or the carrier modulation schemes in which we are using a message as well as we are using a carrier, right? And if the amplitude of the carrier is changing according to the message signal, then such a scheme can be named as binary amplitude shift keying, right? This we have already seen in the last class. Today we are going to define binary frequency shift keying, right? And we can also set it like BFSK, right? Binary frequency shift keying. This today we are going to discuss. Okay. Now, if we talk about the introduction of binary frequency shift keying, we know that as we have seen in the amplitude shift keying, that the amplitude of the carrier wave changes, right? Similarly, if we talk about frequency shift keying, in frequency shift keying, the frequency of the carrier wave changes according to the message signal. And because the message is represented by the binary digits 0 and 1, so that's why the name is binary shift keying. So it is very clear that whenever we transmit 1, we'll have certain frequency, and when we'll transmit 0, we again will have some other frequency, right? We are discussing binary frequency shift keying. So if, for example, if we are having a message 1, then we have to transmit some frequency. And if we are transmitting 0, then again we have to transmit some other frequency, right? Because this is the main objective of frequency shift keying, that the frequency will change as the message change, right? So basically we are mapping our message on the frequency this time, not the amplitude. We are mapping our message on the frequency of the carrier wave, right? So this is the concept. So we can write it down like this, that if in BFSK, the frequency of the carrier wave changes according to the message signal, according to the message signal, that's it, right? In BFSK, the frequency of the carrier wave changes according to the message signal. So now, for example, we are having the waveform which we are going to transmit. We can write it down as SIT, as we have written in the case of binary amplitude shift keying. So SIT can be written as A cos of 2 pi FIT, like this. This time I'm not putting this I sign on A, amplitude, right? Because we are not going to change the amplitude. We are going to change frequency. So here we can write down, this is for I is equal to 1 and 2, because we are using only binary message, right? So we can write down that for I is equal to 1, we can write down S1T, it can be equal to A cos
2 pi f1t, right? And then we can write down as 2t. This we can write down like a cos 2 pi f2t, right? So these are two signals with us, and we can transmit these signals for 1 and for 0. So for example, we can consider that S1t we are transmitting for 0 and S2t we can transmit for 1, right? We can choose any frequency for 0, any frequency for 1, right? This is not any condition that for 0 the frequency should be high or for 1 the frequency should be low, right? We can choose any frequency for anyone. The convention is what that for 1 we always choose high frequency, and for 0 we always choose low frequency, right? This is the convention. So S1t can be a cos 2 pi f1t. This we can use for 0. And a cos 2 pi f2t, this we can use for message 1, right? So now, for example, we are having, again, we can see the waveform. So if I want to see the waveform, then what we can now, for example, we are having a message 1, then we can have a message 0, and again we can have a message 1, right? Now what we can do, this is message 1, this is message 0, this is message 1. Now for 1 we can transmit a cos 2 pi f2t, right? And we assume that this f2t frequency is high, right? So I can assume that f2t can be mentioned like this. Right? Now for 0, I can take the signal that is a cos 2 pi f1t, and the frequency of the signal is low. For example, the frequency of the signal is like this, right? And again, for 1, we can see the frequency signal S2t, that is a cos 2 pi f2t. The frequency of the signal is again very high. So we can draw the signal like this. Right? So this is the FSK waveform. Right? So this is, for example, the frequency F2. This is the frequency F1. This is the frequency F2. Right? The concept is what, that F2 and F1 should have different value, right? Should have different value. And for example, you can say that F2, F2 can have the frequency capital F plus omega, for example, right? If I'm choosing F2 is equal to capital F plus omega, then F1 can be selected as capital F minus omega, right? What I mean to say that, for example, there is a certain frequency of a carrier wave FC, right? So what basically you are doing in FSK, you are changing the frequency of the carrier wave and you are increasing the frequency of the carrier wave
if you are having 1 as a message, right? And for example, if you are having 0 as a message, then you are decreasing the carrier frequency, right? So when you are decreasing the carrier frequency, then you are decreasing it by some constant value, right? For example, you are decreasing the frequency by 30 hertz, for example, right? So what it means, if you are using 30 hertz decrement for 0, then you have to use same 30 hertz increment for 1. This is the concept, right? So you cannot take any arbitrary frequency for representing 1 and 0. There should be some mathematics behind it. And what is the mathematics? That the frequency f1 and the frequency f2 both should have different value. F1 and f2, one frequency should be high and one frequency should be low. Normally we assume that for 1 we are transmitting high frequency and for 0 we are transmitting low frequency, right? So high frequency means what? That for example the carrier frequency was fc, so we are increasing the frequency fc plus omega for 1, and we are decreasing the frequency by fc minus omega for 0. This is the whole thing, or this is the symmetricity which should be there in binary frequency shift keying, right? So most of the time students study that in binary frequency shift keying we are changing the frequency for 1 and 0, but they don't pay attention on this, that there should be a logic by choosing the appropriate frequency for transmitting 1 and transmitting 0, right? This will not be like that. You are choosing any arbitrary frequency. For example, for 1 you are taking 30 hertz, and for 0 you are taking 25 hertz without having any logic, right? So what you have to think that, for example, my carrier frequency is 25 hertz, then for 1 I have to choose 30 hertz, and for 0 I have to choose 20 hertz, because 5 hertz increment is there and 5 hertz decrement is there. So with this symmetricity, it will be easy to decode the signal at the right side of receiver. This is very important, right? So this is the concept of binary frequency shift keying. Okay. Now you have seen the waveform as well. आपने नोट भी कर लिया होगा इसको, तो मैं इधर साइड को रब कर देता हूँ. Now, if we talk about the FSK receiver, how this FSK will be decoded at the side of receiver. So normally you can write it down in FSK. In FSK, the correlation receiver is used in FSK. Correlation receiver is used for the detection of FSK signal. Why this is important to know? Because normally we are using matched filter receiver, right? Everywhere we are using matched filter receiver, but whenever we are talking about FSK, strictly we are using correlation receiver, right? What is the concept of correlation receiver? In correlation receiver, normally the receiver generates local frequency, right? And the receiver try to find out the correlation between F1 frequency signal and F2 frequency signal, right? And it chooses with the highest correlation. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मेरे पास एक रिसीवर है, मेरे पास, मुझे नहीं पता कि ट्रांसमीटर से 1 आ रहा है या 0 आ रहा है. मेरे पास 2 फ्रीक्वेंसी आने की प्रोबेबिलिटी है, आइदर F1 फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आएगा या F2 फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आएगा, क्योंकि आइदर मेरा ट्रांसमीटर मुझे 1 ट्रांसमिट करेगा या मेरा ट्रांसमीटर मुझे 0 ट्रांसमिट करेगा. And we know it that for 1
वो जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही होगी वो f1 होगी, f1 फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा, एंड फॉर 0 f2 फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा। तो मैं क्या करके रखूंगा अपने रिसीवर पर, मेरे रिसीवर में मान लीजिए 2 ब्रांचेस होंगे, राइट, फॉर एग्जांपल 2 ब्रांचेस हैं, उन दोनों ब्रांचेस में एक एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, 2 ऑसिलेटर लगे हुए हैं, एक f1t का, एक f2t का, राइट। मेरे पास सिग्नल आया, तो सिग्नल तो f1t वाले के पास भी दोनों जाएंगे, मतलब जो भी सिग्नल आएगा वो f1t वाले के पास भी आएगा और f2t वाले के पास भी आएगा। वो दोनों से कोरिलेशन कैलकुलेट करेगा, ठीक है। कोरिलेशन कैलकुलेट करने में जिसका कोरिलेशन हाई आएगा उस सिग्नल को आगे पास कर देगा, बाकी सबको फिल्टर आउट कर देगा। सेम काम हम मोबाइल में भी करते हैं, राइट। मोबाइल फोन पे इफ यू हैव दिस मोबाइल फोन, आपने एयरटेल का सिम मान लीजिए डाला हुआ है, तो क्या इसमें केवल एयरटेल का ही सिग्नल आ रहा है आपके पास? ऐसा नहीं है, आसपास बीएसएनएल, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, जितने भी टावर लगे हुए हैं सबके सिग्नल यहाँ पर आ रहे हैं। ये पहला काम क्या करता है? ये पहला काम ये करता है कि ये हर सिग्नल से अपने आप को कोरिलेट करने की कोशिश करता है। हर सिग्नल से इसके अंदर जो लोकल ऑसिलेटर लगा हुआ है वो फ्रीक्वेंसी हर फ्रीक्वेंसी से कोरिलेशन कैलकुलेट करेगी। जिसका कोरिलेशन हाई होगा, यानी कि एयरटेल वाले का एयरटेल से कोरिलेशन हाई होगा, तो वो आगे जाके प्रोसेस होगा, बाकी सारे सिग्नल फिल्टर आउट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस होता है, ये बेसिकली कोरिलेशन रिसीवर का काम है, राइट। सो कोरिलेशन रिसीवर के पास जो सिग्नल आ रहा होगा वो आइदर S1T आ रहा होगा और S2T आ रहा होगा। वी डोंट नो कि F1 फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल आ रहा है, F2 फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आ रहा है। फॉर एग्जांपल S1 इज हैविंग फ्रीक्वेंसी F1 एंड S2T इज हैविंग फ्रीक्वेंसी F2, राइट। ये पहुंचे कोरिलेशन रिसीवर के पास, ये फॉर एग्जांपल कोरिलेशन रिसीवर लगा हुआ है यहाँ पर, इसके पास 2 ऑसिलेटर लगे होंगे, ये फ्रीक्वेंसी F1 भी जनरेट कर रहा होगा, F2 भी जनरेट कर रहा होगा, राइट। अब ये क्या करेगा? F1 वाले से कोरिलेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगर इसका मैक्सिमम कोरिलेशन आता है तो F1 वाले सिग्नल को ये फिल्टर आउट को अंदर ले लेगा, प्रोसेस करा देगा, और F1 का जब F2 के साथ कोरिलेशन होगा वो मिनिमम होगा या कम होगा तो उसको ये बाहर फेंक देगा, राइट। और ये बहुत नेचुरल है ये, क्योंकि इसके पास दोनों फ्रीक्वेंसीज हैं, है ना। हमारी ये F2 सिग्नल का आपने भेजा हुआ है ट्रांसमीटर से सिग्नल, तो इसके पास F2 फ्रीक्वेंसी भी है, ये F2 से कोरिलेशन कैलकुलेट करके देखेगा, F2 वाला मैक्सिमम होगा उसको अंदर ले लेगा, F2 से F1 का कोरिलेशन मिनिमम होगा उसको फिल्टर आउट कर देगा। तो ये प्रोसेस लगातार ही करता रहेगा, ठीक है। ओके, फिर से मैं एक बार इसको बता देता हूँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिसीवर है, ठीक है, इस रिसीवर के पास एक सिग्नल आ रहा है, ये सिग्नल S1T हो सकता है या एक सिग्नल S2T हो सकता है, मुझे नहीं पता, बिकॉज ट्रांसमीटर से क्या बिट आ रही है वो हमें नहीं पता है। बट मेरे को ये पता है कि 2 ही सिग्नल आ सकते हैं, इधर S1T आएगा यहाँ पर या S2T आएगा। S1T आएगा और ये वाले रिसीवर ने क्या किया, इसके पास लोकल ऑसिलेटर्स लगे हुए हैं, है ना, और वो ऑसिलेटर्स F1 फ्रीक्वेंसी भी जनरेट कर सकते हैं, F2 फ्रीक्वेंसी भी जनरेट कर सकते हैं। जो भी सिग्नल आया उसने इसने क्या किया, F1 फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट किया और उसके साथ कोरिलेट किया, इसको कुछ कोरिलेशन वैल्यू आ जाएगी। फिर इसने क्या किया, F2 सिग्नल जनरेट किया और फिर उसी सिग्नल से कोरिलेट कर लिया, कुछ कोरिलेशन वैल्यू आ जाएगी, और उन दोनों में से जो हाईएस्ट कोरिलेशन होगा उस वाले सिग्नल को पिक करके आगे ले जाएगा, बाकी को फिल्टर आउट कर देगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ गया? ओके, सो मैंने सो समझाने की कोशिश की आपको कि कैसे एफएसके का रिसीवर काम करता है या कैसे कोई भी कोरिलेशन रिसीवर काम करता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लेके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने S1T सिग्नल ट्रांसमिट किया था, S1T सिग्नल मैंने ट्रांसमिट किया था। So what receiver will do? Receiver is having oscillators, right? So receiver can generate the signal S1T as well as S2T, and the receiver will continuously generate the signal to calculate the correlation with incoming signal, right? वो तो हर बार ही काम करेगा, क्योंकि उनको तो उसको हमेशा 2 में से हाईएस्ट वाला छांटना है, right? तो वो हर बार S1T S1T निकालेगा, जो भी सिग्नल आ रहा है उसके साथ उसका कोरिलेशन करेगा। So for example, S1T is coming to correlation receiver, right? So we are having 2 options, right? One is that the correlation between S1T and S1T, right? And the second option is that we will have correlation between S1T and S2T.
there should be no doubt that the correlation between S1T and S1T will be high because this is auto correlation, right? S1T का S1T से correlation हमेशा ज्यादा आना चाहिए, S1T से S2T का correlation कम आना चाहिए, और हम कोशिश करेंगे कि बहुत कम आए, राइट? क्योंकि जब ये बहुत कम आएगा तो रिसीवर को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई इसको एक मैं न्यूमेरिक नंबर से बोल रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, बट एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। मान लीजिए कि S1T और S2T का कोरिलेशन आता है 4 यूनिट, राइट? और S1T और S2T का क्रॉस कोरिलेशन आता है 3.6 यूनिट, तो रिसीवर कंफ्यूज हो जाएगा, राइट? कहीं ऐसा तो नहीं कोई नॉइज का इफेक्ट हो कि 4 रह गया है, 3.6 जो असली वाला है वो घट के 4.5 से घट के 3.6 रह गया हो बिकॉज ऑफ नॉइज, राइट? तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमें ऐसा रखना है दोनों फ्रीक्वेंसी F1 और F2 को कि S1T और S2T का कोरिलेशन बहुत कम आए, और एग्जैक्टली जीरो आ जाए तो फिर कहना ही क्या, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप S1T और S2T का कोरिलेशन 0 ले आइए, ठीक है? तो फिर रिसीवर को बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो S1T के कोरिलेशन वाले सिग्नल को आगे भेज देगा और S1T और S2T के कोरिलेशन सिग्नल को डिस्कार्ड कर देगा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। उसको पता है कि ये कोरिलेशन बिल्कुल कम है, ये कोरिलेशन की वैल्यू सिर्फ 0 यूनिट आई है, इसका मतलब ये है ही नहीं। सो फॉर दिस, राइट, देखो क्या एक स्पेशल केस निकल के आ सकता है यहाँ से। आप अभी बातों बातों में हमने कहा कि S1T और S2T का कोरिलेशन अगर 0 हो जाए तो ये कब होता है? जब S1T और S2T दोनों क्या हो जाए? ऑर्थोगोनल हो जाए, है ना? बताया था मैंने, अगर S1T और S2T both are orthogonal to each other, then there will be zero cross correlation, right? There will be zero cross, sorry, correlation लिख लेते हैं जनरली हम लोग, zero correlation value, राइट? इट मींस अगर S1T और S2T दोनों ऑर्थोगोनल सिग्नल्स हैं, तो जब S1T यहाँ आएगा, इसका S1T के साथ कोरिलेशन होगा, तब तो जो भी वैल्यू आनी होगी उसकी आ जाएगी। बट यहीं का जो लोकल S2T जनरेट हुआ है, S1T तो फिर मिलेगा इसको, तो S1T का S2T से जब रिसीवर ये कैलकुलेट करेगा कोरिलेशन तो वो 0 आ जाएगा, तो रिसीवर को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि सिग्नल जो आ रहा है वो S1T वाला है, वो S1T सिग्नल को आगे प्रोसेस कर देगा, ठीक है? या वो डिसाइड कर लेगा कि मैंने S1T के करस्पॉन्डिंग 0 या 1 क्या रिसीव किया है, ठीक है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो ये आइडियल कंडीशन है कि अगर S1T और S2T ऑर्थोगोनल हो जाए, राइट? तो इसका मतलब अगर मैं अगर S1T S2T ऑर्थोगोनल है तो FS, ये जो FS के स्कीम है, ये क्या कहला सकती है उस केस में? इसको अपन बोल सकते हैं ऑर्थोगोनल FS के। क्या बोल सकते हैं? ऑर्थोगोनल FS के, राइट? बेटा क्या आप लोग नोट कर लेते हो जो बोलता हूँ मैं? सर इससे दोबारा रिपीट कर दीजिए। अभी लो बेटा, मुझे सवाल का जवाब दो, क्या आप लोग नोट कर लेते हो जो कुछ भी बोलता हूँ मैं? थैंक यू प्राची। What I am saying, I am repeating it again, कि अगर मेरे पास FS के रिसीवर का जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन कोरिलेशन रिसीवर, और कोरिलेशन रिसीवर का मतलब ये होता है कि रिसीवर जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं उनका कोरिलेशन कैलकुलेट करेगा, और जो कोरिलेशन ज्यादा होगा उसको वो आगे प्रोसेस करेगा, बाकी सबको फिल्टर आउट कर देगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं FSK की बात करूं और मैं एज्यूम कर लूं कि मैंने S1T ट्रांसमिट किया था ट्रांसमीटर से, तो जब ये रिसीवर पर पहुंचेगा FS के रिसीवर पर, तो वहां पर इसका कोरिलेशन कैलकुलेट होगा S1T से भी और S2T से भी, और ये S1T S2T दोनों लोकली जनरेटेड सिग्नल है, मतलब रिसीवर इसको जनरेट कर रहा है अपने आप, और वो जब वो कोरिलेशन कैलकुलेट करेगा तो S1T के साथ S1T का कोरिलेशन ज्यादा आएगा और S2T का S1T के साथ कोरिलेशन कम आएगा, या कहने 0 आएगा अगर S1T S2T दोनों ऑर्थोगोनल है तो उस केस में रिसीवर को पता लग जाएगा कि S1T वाला जो मेरा सिग्नल जनरेटेड है उसका कोरिलेशन ज्यादा आया, इसका मतलब 1 भेजा गया था वहां से, या S1T के करस्पॉन्डिंग वाला सिग्नल मुझे भेजा गया था, और S2T के साथ कोरिलेशन 0 आया है, तो इसका मतलब ये सिग्नल मेरा सिग्नल नहीं है, वो उसको फिल्टर आउट कर देगा, ठीक है? ये रिसीवर का मेन काम होगा, जो कोरिलेशन बेस्ड रिसीवर होगा। तो हमारा काम क्या है, FSK में जो क्रॉस कोरिलेशन है ये हमेशा मिनिमम आ जाए, जितना पॉसिबल हो उतना,
तो सबसे आइडियल कंडीशन ये है कि S1T और S2T दोनों ऑर्थोगोनल हो जाएं अगर, तो या दो सिग्नल जो हम चुन रहे हैं 1 और 0 को भेजने के लिए वो दोनों आपस में ऑर्थोगोनल हो जाएं, तो फिर रिसीवर को बहुत आसानी होगी। वो S1T से S1T का कोरिलेशन कैलकुलेट करेगा, उसकी वैल्यू हाई आ जाएगी। S1T से S2T का कोरिलेशन कैलकुलेट करेगा, उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और 0 और हाई वैल्यू में उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वो हाई वैल्यू को हमेशा पिक करेगा और सिग्नल को आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज देगा। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है ऑर्थोगोनल FSK, राइट, क्योंकि इसमें दोनों सिग्नल S1T और S2T क्या है, आपस में ऑर्थोगोनल है। क्या बात समझ में आ गई? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जरा सर ये कॉन्सेप्ट ASK में भी यूज होता है? ASK में चूंकि हमें एम्पलीट्यूड निकालने हैं, तो एम्पलीट्यूड के लिए हम कोरिलेशन ना यूज करके यूज करेंगे मैच्ड फिल्टर का ही। ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड तो एनर्जी है और हम एनर्जी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। एम्पलीट्यूड के केस में हम तो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हम रिसीव करें ताकि डिसाइड करना हमें आसान हो कि हमने क्या रिसीव किया। ठीक है, तो वहां कोरिलेशन लगा के फायदा नहीं होगा। बट जो भी सिग्नल ऐसे होते हैं जिनमें फ्रीक्वेंसी में इंफॉर्मेशन रखी होती है, वहां पर हमेशा कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। या इन जनरल कह लो आप, जहां फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन में रोल प्ले कर रही है, वहां पर आपको कोरिलेशन रिसीवर यूजफुल मिलेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि FSK जो है, इसमें S1T अगर हमने ट्रांसमिट किया था तो S1T और S1T का कोरिलेशन ज्यादा जाएगा और S1T और S2T का कोरिलेशन कम आना चाहिए, राइट। सो व्हाट इट मींस दैट कि अगर मैं इफ वी कैलकुलेट the correlation between S1T and S2T, मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ कोरिलेशन बेटा? 0 to TS over the time period, simple time period, S1T S2T dt, right? This is the correlation. Okay, so क्या करेंगे? S1T S2T dt अगर हमारे पास ऐसे है तो अपने पास सिग्नल कौन कौन सा था? 0 to TS, एक सिग्नल क्या है? A cos 2 pi F1T, दूसरा सिग्नल क्या है? A cos 2 pi F2T dt, राइट। तो अब ये तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, है ना। ए स्क्वायर को बाहर ले लें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, तो ये क्या बन जाएगा? 2 cos ऑफ 2 पाई F1T cos ऑफ 2 पाई F2T, इंटीग्रेशन साइन लगा लेते हैं यहाँ पर, dt, राइट। सो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2 पाई F1 प्लस F2T, एक तो पार्ट ये आएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, प्लीज इसको देख लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा रफ टाइप लिख रहा हूँ बट आप समझ ही गए क्योंकि आप 10 बार कैलकुलेशन कर चुके हैं। cos ऑफ 2 पाई F1 माइनस F2T dt, राइट, ऐसा कुछ भी, F2T dt, राइट। ये कैलकुलेशन आपने DSB में भी की है ना, कई सारी जगह की होगी। तो इसका मतलब मेरे पास जब मैं S1T और S2T को कोरिलेशन निकाल रहा हूँ तो मेरे पास दो सिग्नल आ रहे हैं, एक तो आ रहा है F1 प्लस F2 और एक आ रहा है F1 माइनस F2, राइट। अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज निकल के आती है कि F1 प्लस F2 यानी कि दो फ्रीक्वेंसीज का एडिशन, ठीक है। तो ये दो फ्रीक्वेंसीज का एडिशन को हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी कैटेगरी में मान सकते हैं, बोलो बेटा, है ना। भाई दो फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएंगी तो हाई फ्रीक्वेंसी बनाएंगी। रिसीवर पर हमेशा कौन सा फिल्टर यूज होता है? अगर रिसीवर पे मैं फिल्टर लगाना चाहूँ तो कौन सा फिल्टर लगाऊंगा रिसीवर पे? बोलो। वेरी गुड, लो पास फिल्टर। वेरी गुड, लो पास फिल्टर। सो यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला कंपोनेंट तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम लोग लो पास फिल्टर लगाएंगे, तो ये तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम आ जाती है इसकी, क्योंकि F1 माइनस F2 तो डिफरेंस है। अब F1 माइनस F2 डिफरेंस है तो ये लो फ्रीक्वेंसी होगी। अब लो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल लो पास फिल्टर से पास होकर बाहर आ सकता है, वो मेरे लिए प्रॉब्लम करेगा। तो हमको क्या करना है? इस वाले सिग्नल को किसी भी तरीके से मिनिमाइज करके रखना पड़ेगा, इस वाले सिग्नल, ठीक है। और इसके लिए कोशिश ये करेंगे कि F1 माइनस F2 अगर ये 0 हो जाए, या ये एक टाइम पीरियड का डिफरेंस क्रिएट हो जाए इनके बीच में, तो क्या होगा भाई? ये क्या है? ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस है, याद है,
0 to ts इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 pi ft, तो ये क्या आता है, हमेशा 0 निकल के आता है ओवर द टाइम पीरियड। अगर आप cos को इंटीग्रेट करोगे, साइन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या निकल के आएगा, वो 0 निकल के आएगा। तो f1 माइनस f2 जो फ्रीक्वेंसी है, अगर ये इसका जो डिफरेंस है वो कोई इंटीजर फ्रीक्वेंसी या उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का कोई हार्मोनिक निकल के आ जाता है तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, मैं इस पॉइंट को बहुत डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि फिर ये बहुत टिपिकल सा बन जाएगा, बट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि केवल ये फैक्टर अगर हम लोग कम कर पाए तो S1t S2t की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, याद है, क्योंकि ये हमें कम करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली इसको मुझे क्या करना है, या तो आइडियली ये 0 हो जाए, तो ये f1 माइनस f2 का मतलब होगा ये दोनों फ्रीक्वेंसीज ऑर्थोगोनल है। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो ये पूरा इंटीग्रेशन हमेशा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तब फिर तो मुझे दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो S1t S2t तो 0 हो गया, तो 0 और कोरिलेशन वैल्यू में रिसीवर को चुनने में तो कोई परेशानी है ही नहीं। प्रॉब्लम कम हो सकती है जब कोरिलेशन की वैल्यू कुछ निकल के आए और S1t S2t की भी कुछ वैल्यू निकल के आ जाए, तो शायद रिसीवर कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं कि S1t S2t को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है एज पॉसिबल, राइट। ये जितना छोटा रहे, आइडियली 0 हो जाए तो ऑर्थोगोनल एफएस के बन गया, मान लीजिए 0 ना हो, मिनिमाइज्ड रह जाए, तो जितना मिनिमाइज्ड हो उतना अच्छा है हमारे लिए। तो अगर ये कैलकुलेशन सॉल्व करके देखते हैं तो हम जिस फैक्टर पर जाके पहुंचते हैं वो है cos ऑफ 2 pi f1 माइनस f2 dt। इसका मतलब f1 और f2 जो दो फ्रीक्वेंसीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका सिलेक्शन, राइट। ये मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता था कि आप कोई भी आर्बिट्रेरी सिग्नल f1 और f2 फ्रीक्वेंसी का नहीं चुन सकते। देख लिया आपके सामने कैलकुलेशन है, यू हैव टू चूज अ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी f1 and f2, right, to represent 1 and 0 so that the difference of f1 minus f2 should be minimized at the side of receiver। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है?